Hello, children. Today we are going to discuss the third poem for class ninth. The poem is Rain on the Roof. रैन का मतलब क्या होता है? बारिश होती है ऑन द रूफ, छत पर। ठीक है। छत पर जब बारिश होती है, when it falls on the roof, how does the poet feel at that time? In this poem, the poet has beautifully described about that moment when it rains. Quotes Kinley. He is the poet of this poem. So let us go through the stanza and its beginning. When the sky is covered, here we are, rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान में काले बादल छाए हों and it starts raining और बारिश होने लगे, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? This is the question to all the readers. Have we ever listened? क्या हमने कभी सुना? To the patter of soft. Patter means, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या कभी आपने गिरती हुई बारिश की बूंदों का जो टपटपाने का जो आवाज होता है, जो सॉफ्ट साउंड होता है, वो सुना है? Have you ever got your paid attention on the patter, when the rain falls on the roof? It creates sound. Have you ever heard that? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? What thoughts? You know, with what types of thought do you immerse yourself with? किस तरह के thoughts आपके दिमाग में आते हैं when you hear the melody of nature? जब आप प्रकृति की गीत को सुनते हैं. Read the poet to find out what the poet dreamed while listening the rain. Read the poem to know what happened or what the poet felt when he hears the sound of falling rains on the roof. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. When the humid shadows, humid means wet, भीगी हुई, गीली shadows, hover, wanders here and there over all the starry spheres. You know, over all the starry spheres means everywhere on the ground, and the melancholy darkness and a charming darkness, मन को अट्रैक्ट करने वाला darkness gently weeps, smoothly weeps, cries in rainy tears. बारिश की बूंदों की तरह आंसू बनकर जमीन पर गिरता है. जब गीली गीली जो बूंदें होती हैं इधर उधर घूमते हुए हर तरफ एक मन मुक्त करने वाले अंधेरे में जब बड़े प्यार से गिरती हैं, तो होता क्या है? व्हाट अ ब्लीस टू प्रेस द पिलो. कितना मजा आता है टू प्रेस, दबाने में, द पिलो, तकिया को, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड.
एक ऐसे बेड पर जो कि एक कॉटेज चेम्बर में हो, एक झुग्गी झोपड़ी में हो, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और जो पैटर होता है, जो बारिश की बूंदें होती है, उनके टपटपाने की आवाज को सुनने में, ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड, उस बारिश की बूंदों के टपटपाने की जो आवाज होती है, उसको सुनने में कितना मजा आता है जब हम झुग्गी या झोपड़ी में सोए हों और हमारे सिर के ऊपर टप 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 की आवाज आती है. In this poem, the poet has described naturally what happens when we feel and hear the melody of nature. जब प्रकृति की मधुर गीत को हम जब सुनते हैं तो हमें कैसा फील होता है, इसके बारे में पोएट ने बताया है. नाउ आई होप इट वुड बी क्लियर. पहला जो स्टेंजा होगा वो क्लियर होगा. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. When the humid shadow hover all over the starry spheres, जब गीली गीली, शेडोज का मतलब परछाइयाँ, होवर, वंडर, इधर उधर जब घूमती है, ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, हर तरफ, ठीक है, एंड द मेलांचली डार्कनेस, और मन मुग्ध करने वाले जो अंधेरे में जो बारिश की बूंदें आंसू बनकर गिरती हैं, या जब रात रोती है, तो होता क्या है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस, कितना मजा आता है कि एक झुग्गी झोपड़ी जैसे कोटेज में सो करके बेड पर और तकिया को दबाया जाए और टपटपाने की जो आवाज है सिर के ऊपर, उसको सुना जाए, तो बड़ा मजा आता है. इट्स द सेंसेशन आर फीलिंग, ओके, of poet in this poem. Now let us go through the second stanza of this poem. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Every tinkle on the shingles, हर टिंकल में, on the shingles has an echo in the heart. हृदय के कोर कोर में, you know, in each part of my heart there is a tinkle, there is an echo, एक आवाज सी होती है. जब भी बारिश की बूंदें मैं सुनता हूँ, टपटपाने की आवाज सुनता हूँ, पैटर साउंड, तो मेरे हृदय में एक आवाज होती है. व्हाट इज दैट साउंड? एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड आई immerse myself with thousand dreamy fancies. you know, ख्याली पुलाव कह सकते हैं जिसको, मतलब मन में मेरे बहुत सारी फैंसीज, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं. आई एम बिजी विद बीइंग स्टार्ट, और सारी चीज़ों के साथ में व्यस्त हो जाता हूँ. जब भी सुनता हूँ तो इमेजिनेशन में डूब जाता हूँ, और जब इमेजिनेशन में डूबता हूँ तो बहुत सारे सपने देखता हूँ. एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their air thread into woof, और थाउजेंड रिकलेक्शंस, हजारों रिकलेक्शंस में, जो वी मीन्स बुनना, ठीक है, और ये बुन रहे होते हैं हजारों रिकलेक्शंस, देयर एयर थ्रेड, अपने हवा रूपी धागे को. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं सुनता हूँ बारिश के गिरने की आवाज रूफ पर, और टपटपाने की जो आवाज सुनता हूँ, तो ये सारा कुछ मेरे साथ होता है. होता क्या है, मेरे हृदय में आवाज सी होती है, मैं सपनों में खो जाता हूँ, और मैं हजारों रिकलेक्शंस, मतलब हवा रूपी धागे से मैं हजारों सपने बुनता हूँ. और ऐसा तब होता है जब मैं पैटर साउंड को सुनता हूँ ऑन द रूफ, छत पर. कोटेज का छत भाई आप लोग देखे होंगे, और उस छत पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो जो टपटपाने की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुनकर जो पोएट हैं वो बहुत ही खोए खोए से हैं और इमेजिनेशन में डूब जाते हैं, क्योंकि he likes the natural beauty and the melody of nature. He is a natural man. He adores nature. वो प्रकृति को पसंद करते हैं. एंड ही लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी, और वो प्राकृतिक सुंदरता से काफ़ी प्यार करते हैं. नाउ let us go to the third and last stanza of this poem. Now in memory comes my mother.
How sad. अब क्या होता है उनके साथ जब ऐसा होता है, जब भी बारिश होती है वो टपटपाने की आवाज़ सुनते हैं, तो उनके साथ होता क्या है? What happens to him? A memory comes of his mother. तो उनको माँ की याद आती है, as she used in years agone, जैसा कि वो किया करती थी बहुत साल पहले. Now it seems that the poet's mother is no more with him. जो पोएट की माँ है वो उनके साथ नहीं है. शी इज डेड. वो मर चुकी हैं. तभी तो मेमोरी आ रही है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, Eros left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. To regard the darling dreamers, ये इन डार्लिंग ड्रीमर्स को रिगार्ड करते हैं, संबंधित बताते हैं माँ के साथ जब ये होते थे. एंड वेन सी लुक्स आफ्टर हिम, ही वॉज देन बिजी विद डार्लिंग ड्रीमर्स. तो उन दिनों या उस समय भी जो पोएट हैं वो डार्लिंग ड्रीमर्स, इनके सपने में बहुत प्यारे प्यारे क्रिएशंस आते हैं और ये उनके साथ बिजी हो जाते हैं. रश लेफ्ट देम टिल द dawn. और ऐसा कब तक होता था? शाम तक. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे महसूस होता है हर फॉन्ड लुक, हर केयरिंग, उनकी जो देखभाल करने का जो नज़रिया था, इस चीज़ को मैं फील कर पाता हूँ. अब देखिए, एक मेमोरी है जो कि कनेक्ट करी जा रही है, रिलेट करी जा रही है नेचर से, रैन से, कि जब बारिश होती है और जब ये पैटर साउंड सुनते हैं तो इनको इनके माँ की याद आती है, पोएट को. ठीक है. एंड ही लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और वो अंत तक, आखिरी तक, एंड तक इस चीज़ को सुनते हैं. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रैन. और ये किसके कारण है? रैन के कारण है, क्योंकि जब इसका पैटर साउंड शिंगल पे गिरता है, छत पे गिरता है, पत्तों पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, छत पर गिरता है, तो इस साउंड से इनको एक इमेजिनेशन आता है, इनको इनके माँ की याद आती है. और ये रहस्य है प्राकृतिक दृश्य का, कि जब भी हम लैंडस्केप में जाते हैं, जब भी हम प्रकृति के संपर्क में जाते हैं, तो हमें अच्छा फील होता है. ऐसा ही है पोएट के साथ. पोएट जब भी गिरती हुई बारिश को सुनते हैं ध्यान से, तो इनके दिमाग में एक मेमोरी आती है जो कि इनके माँ की होती है, और वो अपने माँ द्वारा की गई केयरिंग को ध्यान देते हैं. ऐसा लगता है कि उनकी माँ उनको फिर से गोद में ली हुई है और खूब ढेर सारा प्यार दे रही है. शी इज लुकिंग आफ्टर हिम, वो उनकी देखभाल कर रही हैं. शी इज गिविंग लव टू हिम, वो उनको प्यार दे रही हैं. एंड शी इज फॉन्ड ऑफ कैरिंग हिम, और वो बड़े शौक से पोएट को अपने लैप में, अपनी गोद में बिठाकर केयर कर रही हैं, प्यार कर रही हैं. सो बाय द नेचर द पोएट कनेक्ट्स हिज इमेजिनेशन एंड मेमोरीज टू हिज मदर. अपने माँ के बारे में वो सोचते हैं. Now that's it for the explanation. We would be covering the questions and answer and many more things in the next video. So keep practicing and learning till the moment.